आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। नोटिसेबल मुझे तब हुआ जब मेरे फ्रेंड्स या मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स दे टोल्ड मी कि अभी आपकी तो हेयर लाइन रिसीड हो रही है। I finally decided to do my hair transplant on QHT because one, they are very professional, and this is me who is very afraid of syringes and injections. So, hello everyone, my name is Ayush. I am from Dehradun, and I did my hair transplant on 10th of July. So today is my 4th PRP. I started noticing excessive hair fall around 5-6 years back. And I think that मेरा hair fall is mainly due to the profession which I am and some genetics also. Noticeable मुझे तब हुआ जब मेरे friends या मेरे खुद के family members they told me कि अभी आपकी तो hair line recede हो रही है. तो and also whenever I took shower I used to see excessive hairs on my hands when I used to shampoo. So इन सब कारणों से I got a bit stressed and then I decided that yes, something needs to be done. उसके बाद जैसे सभी लोग हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जो जूझते हैं, they do home remedies, तो वही सब मैंने भी किया, थोड़ा बहुत home remedies. I consulted few doctors, then took medicines, but it was all, I think it was all temporary. Like 1-2 महीने तक मेरा हेयर फॉल रुकता था, but it was not a permanent solution to it. Then finally I decided to do hair transplant. Because you only regret the chances that you don't take in life. So finally then I decided that yes, now I'll go for the hair transplant, and I told my parents. My parents were a bit skeptical about it in the initial stages, like everyone else's. They did say that don't do it, it's not that big an issue. But slowly they also understood that it's just a minor surgery, not a big procedure, and then they agreed to it, and then I did it. जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया तो देयर वर अ लॉट ऑफ क्लिनिक्स दैट वर देयर इन माय होम सिटी आल्सो एंड दिल्ली, मुंबई एंड आल्सो अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज. I finally decided to do my hair transplant on QHT because one, they are very professional, and also the result here which I have seen in the YouTube, also from my friends and the past record if you take, then QHT has quite an impressive record. So I decided to do from QHT. So जब मैं अपना ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक आया था, so the doctors were very professional. उन्होंने पूरा प्रोसीजर मेरे को पहले बिठा के समझाया that okay, this is how the surgery is going to do. It is going to take 2 to 3 days, proper 2 to 3 days, from morning 8 o'clock till evening 6 to 7 o'clock. So when I came here for the first time, the doctors were very professional. They guided me very well, and they told me the entire procedure, and then they sent me after. Then first step in the transplant procedure is they draw a hairline on your head, and then they see कि ये hairline आप पे कैसी लग रही है. Every step they consult from you that is it okay, are you happy with the hairline. So when they asked me whether I was happy with my hairline, I saw that the doctor has done a pretty good job, and उन्होंने काफी अच्छे से मार्किंग किया था. They knew what my concern were. And I was happy with how the doctors gave me a hairline. उसके बाद they take you to OT where your first day of procedure happens. Then OT में the first thing that you see is the hygiene is very good. The doctors all wear proper all the protective equipments, surgical mask, gloves, etc. Hygiene point of view से QHT is very good. This is from my personal experience that I am saying. QHT is very professional and they take very good care of your hygiene. So during the entire procedure, and there are frequent refreshments that they give you throughout your surgery so that you don't feel dizzy or you don't feel any left out or bored. So they keep talking to you, they keep sharing their views, and they keep asking from you that whether you are feeling the pain or not. So these are all the things, छोटी-छोटी चीजें हैं जो कि QHT में they take it very like seriously, and that's why the procedure here is absolutely painless. I felt that the procedure was painless, and this is me who is very afraid of syringes and injections. So the surgery that I opted for is called QHT technique,
and a total of around 5,000 grafts were implanted, which again was a painless procedure. The only very minor pain that we experience is the time when they give you anesthesia on your head. That is the only pain that you will experience. After that, the doctors are very good, they are very friendly, they will keep talking to you and they will keep asking you whether or not you are feeling the pain. After implanting 5,000 grafts, you will again come to the doctor where he will guide you for the next 2-3 days, as they are the most crucial days of the transplant. They will tell you in return but all the procedures you have to follow once you go home. थोड़ा swelling का जो मेरे को issue था, I discussed with the doctors and they told that थोड़ी बहुत swelling होना is natural. They put a band-aid on your forehead so that the swelling does not recede, which eventually it did. After 4-5 days the swelling also went away, and उसके बाद जब आप once you are at your home, and then every day the QHT team will call you, they will text you on WhatsApp, they will personal message you on your number whether or not you are feeling okay, all is okay, any concern. They will ask your everyday update of the head, and also when you have to wash your hair and how you have to wash your hair. My overall experience in QHT is very nice, and I would advise everyone who is thinking of getting a hair transplant or who is in a dilemma that whether or not you should go ahead with the transplant or not. My personal suggestion to you guys is you should definitely go for it. It's a completely painless procedure, and there are many myths. Until the time we don't actually come to the clinic and ask from the doctors, there are many myths in our mind that will remain there in your mind if you do not ask and do something about it. Okay, in the end, I just want to say QHT that you're doing a good job and keep up the good work. अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मेरी जो बाल्डनेस है वो स्टार्ट हुई 2008 से, जिस वक्त मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने कई तरह के ऑयल यूज़ किए, जिसमें जड़ी बूटियों के ऑयल। तो यहाँ से सारा कंसल्ट करने के बाद सारा फॉर्म वगैरह फिलअप, जो हेयर वॉश, हेयर कट वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद वो टीमें गए ऊपर। हेलो, मेरा नाम राजकुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से आया हूँ
और आज मेरी पहली पीआरपी है। लास्ट मंथ मेरी 23 तारीख को जो है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आज 1 महीना हो गया, इसलिए पीआरपी के लिए आए हैं। क्यूएसटी में आने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि भाई गंजेपन से निजात मिले, तो वो तो चलो धीरे धीरे दिख जाएगा रिज़ल्ट। अभी तो दिख रहा है, मतलब जो हुआ ट्रांसप्लांट हो अच्छा लग रहा है कि मतलब जो यहाँ आना हो सफल हो, दिख रहा है अभी। तो मेरी जो बाल्डनेस है वो स्टार्ट हुई 2008 से, जिस वक्त मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो उसका मेन रीज़न जेनेटिकली तो नहीं मुझे लगता, कि खान पान, जो गलत खान पान है, रोज़मर्रा की जो आदतें होती हैं उठने बैठने की, मतलब गलत आदतों की वजह से वो तरह तरह के केमिकल यूज़ करना, बालों में जेल लगाना, ये वो स्ट्रेटनर करना, जो भी है मतलब गलत आदतों की वजह से था वो ज़्यादा। जेनेटिकली तो उतना नहीं था, क्योंकि मदर की तरफ से जो मेरे मामा वगैरह उनके भी उतने नहीं हैं। फादर के भी हल्के थे पर इतने तो नहीं थे, हल्के आगे से हल्का सो हेयर लाइन थी बस। तो ये गलत आदतों का ही मेरे को जहाँ तक है नतीजा है लग रहा। तो मुझे अपना हेयर फॉल का पता इस तरह से चल रहा था कि जैसे नहाते हैं उस टाइम भी मतलब एक्सेसिव बाल जो है गिर रहे हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा पता मेरे को तब चला जब मैंने अपना क्लीन हेड कराया, क्लीन शेव कराया। तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ से जो साइड की जो है ये हेयर लाइन जो है सारी पीछे को चली गई है। तो वहाँ से मेरे को लगा कि गंजेपन की शुरुआत हो चुकी है। रोकने की बहुत कोशिश की पर रुका तो नहीं, वो होता ही गया। एट लास्ट फिर क्यूएसटी में आना पड़ा। तो हेयर फॉल रोकने के लिए मैंने मतलब कई तरह के ऑयल यूज़ किए, जिसमें जड़ी बूटियों के ऑयल्स और जो आगे कंपनीज से आते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑयल्स, मेडिसिन नहीं यूज़ की, ऑयल्स यूज़ किए और कंसल्ट किया था डॉक्टर से। वैसे नहीं, इनडायरेक्टली किया था कि भाई इस तरह से हो रहा है दिक्कत, तो इसके लिए क्या किया जाए, पर वो भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी बात, तो ऑयल तक ही सीमित रही फिर, बाकी उससे ज़्यादा हेयर फॉल के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने हेयर पैचेस के बारे में भी सोचा कि हेयर पैचेस लगा लूँ, लेकिन बाद में जब मैंने उनके झंझट देखे, बाद में लगाओ फिर 20 से 25 दिन में, 15 दिन में फिर से चेंज करो, सर्विसिंग कराओ, ये वो, तो मैंने बोला इतना टाइम पहले ही नहीं होता है, सारा इतना झंझट करने की वजह से कौन करे। तो इसलिए मैंने जो हेयर पैचेस को जो है नहीं अपनाया। तो फिर धीरे धीरे जो है बाद में फिर ट्रांसप्लांट का आया मन में ख्याल कि ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट जो एक परमानेंट सोल्यूशन है, जिसमें कि मतलब नेचुरल जो बाल हैं वो दिखते हैं, भाई बाल अपने हैं, नेचुरल हैं, नॉर्मली जैसे होते हैं, कटिंग जो भी है, हेयर कट जिस तरह का करना है आपने, जिस तरह का वो सभी। तो क्यूएसटी का इसलिए आया कि यहाँ का जब सारा मैंने सर्च किया और भी दूसरे भी सर्च किए, तो क्यूएसटी का एक तो जो टेक्निक है क्यूएसटी FUE वो बहुत अच्छी है, और उस टेक्निक में वो जो प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्यूएसटी में आया। और उसके बाद आने के बाद भी जो यहाँ से कोऑपरेशन मिल रही है, जो सारा गाइडेंस मिल रही है, तो उसके लिए जो है क्यूएसटी मुझे बेस्ट लगा। तो जब क्यूएसटी का फाइनल हुआ कि क्यूएसटी से कराएंगे, तो नंबर देखा यूट्यूब में, वीडियोस तो देख ही रहे थे, तो उस पे ही जो है नंबर भी था, तो उस नंबर पे मैंने कॉल नहीं की, मिस कॉल की, फिर यहाँ से बैक कॉल आई थी। तो उन्होंने मुझे सारा गाइड करके बताया कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा क्लियर करके बताया, और फ़ोटोज़ मांगी, वीडियोस मांगी, तो उसको उन्होंने चेक किया डॉक्टर से अपने कंसल्ट करवा के। उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से आप जो है इतने आपके ग्राफ्ट लगेंगे, इस तरह का आपका सारा जो प्रोसीजर रहेगा। तो जब आए, शुरू में आया क्यूएसटी में, तो थोड़ा नर्वसनेस था कि पेन को लेके, पेन तो नहीं होता होगा, सब कुछ थोड़े डाउट्स होते हैं मन में क्या करके। तो यहाँ से सारा कंसल्ट करने के बाद सारा फॉर्म वगैरह फिलअप, जो हेयर वॉश, हेयर कट वगैरह करने के बाद जो फिर उसके बाद वो टीमें गए ऊपर ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन थिएटर में। तो वहाँ पे पूरी एक डॉक्टर्स की टीम थी, 6-7 मेंबर्स होते हैं उसमें, तो सारा वो अच्छे से मतलब कोऑपरेट करते हैं और
बीच बीच में पूछा जाता है, रिफ्रेशमेंट के लिए पूछा जाता है। सीनियर डॉक्टर्स आते हैं कि भाई आपको कुछ पेन वगैरह कोई तकलीफ़ और कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ऊपर से जो वहाँ का हाइजीन था, एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा था। तो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ 4000 ग्राफ्ट लगे थे, थोड़े क्राउन एरिया में लगे थे। तो QST टेक्निक मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ग्राफ्ट डोनर एरिया से निकाल के डायरेक्ट जो है रेसिपेंट एरिया पे जो है प्लांट किए जाते हैं डायरेक्ट। बाहर के एटमॉस्फेयर का कोई वेट नहीं, कोई इंतज़ार नहीं है। जब जाहिर सी बात है कोई सीधे ही जब चीज़ निकाल के लगाई जा रही है तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ही मैंने QST को चूज़ किया था। तो अब तक का मेरा जितना भी यहाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ सभी व्यूअर्स को कि आप यदि ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं अपना, तो QST में ज़रूर आए। जहाँ तक कॉस्ट की बात रही, तो कॉस्ट भी बहुत ही अफोर्डेबल है। मैंने खुद भी जब अलग अलग जगह से सर्च किया, क्योंकि जो यहाँ टेक्निक मिल रही है QST FUE, उस टेक्निक के बाद भी यहाँ की जो कॉस्ट है वो नहीं, मुझे नहीं लगता भाई बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है। तो आप एक बार खुद भी कंसल्ट करके देख सकते हैं कि भाई सच में है कि नहीं। भाई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो आप एक बार खुद पता कर लें और अदर क्लिनिक की जो है फिर चेक कर लें। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई नहीं, वाकई जो है यहाँ की कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, कर सकते हैं। तो अभी मेरा आप जैसा देख रहे हैं शेडिंग फेज चला हुआ है। आज मेरी फर्स्ट PRP हो रही है। तो आगे जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी रिज़ल्ट रहेगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट PRP में। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।